Hello students, a very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next chapter of your syllabus. The name of this new chapter is Coal and Petroleum. Before enter into the chapter, what are the concept we will learn from this chapter. So in this chapter, we will discuss about the fossil fuels, formation of coal, formation of petroleum, what are the types of coal and what are the uses of coal and the petroleum. So today in this session we will discuss about the fossil fuels, what is the meaning of coal, formation of coal and types of coal and uses of coal. तो आज के सेशन में हमें फॉसिल फ्यूल का मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या यूजेस है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेना है। कोल का मीनिंग क्या है, कोल क्या है, किस तरह से फॉर्म होता है, उसके क्या क्या टाइप्स है, उसके क्या क्या यूजेस है, इसके बारे में आज के सेशन में हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है। सो स्टार्ट टुडे सेशन। We all require a large number of substances and materials in our daily life for the continuation of life. हम जीने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या बोलो तो सब्सटेंस की हमें क्या है जरूरत पड़ती है। These substances allow the existence of life and fulfill the needs of living beings. Some of these materials like air, water, sunlight, mineral, etc. are found in nature and are called as the natural resources. Some of the materials are found in the nature like air, water, sunlight and the minerals are called as the natural resources, and others are made by the man artificially are called as the man-made resources like paper, cloth, plastic, etc. So we require a large number of substances in our daily life. Some are natural resources, some are the man-made resources. For example, natural resources like air, water, minerals, sunlight, and the man-made are the paper, clothes. There are various kind of materials we are using in our daily life. Plants and animals are the living natural resources, while air, water, soil, and minerals are non-living natural resources. Now see, plants and the animals are the living natural sources. जो अपने प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, वो क्या होते लिविंग क्या है नेचुरल रिसोर्सेस है, और अपना जो एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स है वो क्या है नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस. On the basis of the availability, various natural resources can be broadly classified into two groups. Now see, on the basis of availability, various natural resources can be broadly classified into the two categories. One is renewable resources is called as the inexhaustible resources, and next one is non-renewable resources like exhaustible natural resources. जो उनकी मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है इसके आधार के ऊपर नेचुरल रिसोर्स को क्या तो दो भागों में क्या है उसको बांट दिया गया है. एक है उसका रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नाउ सी नेचुरल रिसोर्सेस. Natural resources are classified into the two categories. Now see, one is inexhaustible natural resources. Next one is exhaustible resources. Exhaustible natural resources. Inexhaustible resources also called as renewable resources. उसको क्या है renewable resource भी कहा जाता है. It is called as the renewable resources or non-renewable resources. Non-renewable resources. Non-renewable resources. Understand? On the basis of availability,
various natural resources can be classified into the two categories. One is inexhaustible natural resources, are also called as the renewable resources, or next one is exhaustible natural resources, is also called as the non-renewable resources. Understand? Now let's start our syllabus. First one is the fossil fuels. अब हम डिस्कशन कर लेते हैं. So what is the meaning of fuels? Fuels की क्या मीनिंग होती है? It's very important for you. Now see the fuels. Fuels are substances which produce a lot of heat on burning at a reasonable cost. Example, wood, LPG, coal, etc. All common fuels contain carbon as a free element or in a combined state notion. Fuels are substances which produce a lot of heat and heat on a burning at a reasonable cost. फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको हीट अप्लाई करेंगे, ध्यान में रखिए, जब उसको बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद वो क्या है, बहुत सारी हीट को क्या है प्रोड्यूस करते. फॉर सिंपल एग्जांपल आवर वुड, एलपीजी अपना जो कोल रहता है उसमें क्या रहता है तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन. द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड इन नेचर फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, fossils are called as the fossil fuels. Like example is coal, petroleum and the natural gas. Now the fuels that are obtained from the dead parts of plants and the animals in the nature is called as the fossil fuels. ध्यान में रखिए, what is the meaning of a fuel? So fuel is a substance which produce a lot of heat energy when we apply the burn. जब हम उसको किसी चीज को बर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वुड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. जब हम वुड को बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हमें क्या कहना है, फ्यूल्स कहना है. द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड पार्ट्स, जो फ्यूल प्लांट और एनिमल्स के डेड बॉडी पार्ट से मिलते हैं उसको हमें क्या कहना है, फॉसिल फ्यूल्स कहना है. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस. These are the mainly found in the earth crust and are obtained either by digging or drilling holes into it. Now see. So fossil fuels are obtained in the earth crust. जब ये fossil fuels कहाँ पर मिलता है तो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है. तो किस तरह से मिलेंगे, obtained either by digging, जब अर्थ को क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, उसका ड्रिलिंग करेंगे, उसमें होल मारेंगे, तभी हमें क्या है, fossil fuels क्या है, मिल जाता है. Fossil fuels are non-renewable or exhaustible resources. As once used up, they take millions of years to form again. Now see, fossil fuels are the non-renewable resources. If once time end, अगर वो एक बार खत्म होते हैं तो उसको ऑप्टन करने के लिए क्या होता है, मिलियन वर्ष हमें क्या है लग जाते हैं. Fossil fuels burn to produce a large amount of heat and the light. The heat can be used to cook food, run engines, to generate the electricity. Now see, when fossil fuels start burning at that time produce the large amount of heat energy, and this heat energy is used for the cooking the various kind of foods, running the different kinds of engines and generate the electricity. Fossil fuels के माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाता है. हम जब अपने घर में अलग अलग प्रकार के जो फूड्स बनाते हैं वो भी किसके ऊपर बनाते हैं, हम लोग तो अपने फॉसिल फ्यूल के ऊपर बनाते हैं. तो अलग अलग प्रकार के जो इंजन जो रन होते हैं, चलते हैं, वो किसके आधार के ऊपर चलते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स के आधार के ऊपर क्या है, चलते हैं. अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? द फ्यूल्स दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द dead parts of plants and the animals are called as the fossil fuels, like coal, petroleum and the natural gas. And all these fossil fuels are obtained from the earth crust after the drilling and digging the earth. जब हम अर्थ को क्या करेंगे, उसको डिग करेंगे, उसको ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद ये fossil fuels क्या हो तो ऑब्टेन हो जाता है. So when we apply the heat, fossil fuels produce the large amount of heat energy, and this heat energy is very useful for the cooking the various kind of food materials, for running the different kinds of engines and the production of electricity.
and fossil fuels are the non-renewable resources. If once they end, अगर वो एक बार अगर फिनिश होते हैं उसको रेडी करना क्या होता है बहुत ही मुश्किल है. अगर फॉसिल फ्यूल्स को अगर हमें अपटन करना है इट मस्ट बी टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. अगर उसको हमें रेडी करना है तो क्या है लगभग मिलियन साल उसको क्या है टाइम लग जाता है. नेक्स्ट वन सी कोल. अब डिस्कशन कर लेंगे कोल. नेक्स्ट वन इज और अब तक जो हमने पढ़ा फ्यूल्स के बारे में पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स. नाउ डिस्कस अबाउट दी कोल. नंबर 2 is coal. Coal is one of the fossil fuel. ध्यान रखिए coal is a good example of fossil fuels used to cook the food. coal हम किस लिए करते हैं तो for cooking the food. It is hard as a stone and black in color. coal कैसा रहता है बताते हैं बहुत ही हार्ड रहता है और उसका कलर क्या हो तो ब्लैक रहता है. In earlier times it was used to run the steam engine. पुरातन काल में क्या हो तो स्टीम इंजन को रन करने के लिए कोल को क्या है यूज किया जाता था. कोल इज आल्सो यूज्ड एज द इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड इन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर स्टेशन. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द थर्मल पावर स्टेशन कोल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. थर्मल पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है किसके माध्यम से हो तो विद द हेल्प ऑफ ओनली कोल. लिसन सो कोल इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है कोल को क्या है यूज किया जाता है. लिसन कोल इज अ फॉसिल. लिसन एंड कोल इज अ स्टोन. द कलर ऑफ कोल इज अ ब्लैक. कोल एक क्या होता है पत्थर की तरह है. उसका कलर कैसे रहता है तो ब्लैक रहता है. इन अर्ली टाइम्स इट वाज यूज्ड टू रन द स्टीम इंजन. पुरातन काल में स्टीम इंजन को रन करने के लिए इसको यूज किया जाता था. तो कोल प्ले an important role in the thermal power station for the production of electrical energy. Now see formation of coal. कोल का फॉर्मेशन किस तरह से ध्यान में रखिए. फॉर्मेशन ऑफ अ कोल. फॉर्मेशन ऑफ कोल. About 300 million years ago, dense forest occurred on the earth is lying low-lying wetland areas as the trees got buried under the soil due to the flooding it is now. 300 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था. जो डेंस फॉरेस्ट है वो टोटली अर्थ के ऊपर लाए हुए थे. लाए होने के बाद उनके ऊपर जो एक सॉइल का लेयर आ गया. लेयर आने के बाद उनमें जो प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी जो पार्ट्स देखते हैं इट टेक्स अ नंबर ऑफ ईयर्स अगो. बहुत साल बाद उनका क्या हो तो किस में कन्वर्ट हुआ बोले तो कोल में क्या है कन्वर्ट हो चुका है. मोर एंड मोर सॉइल गॉट अक्यूमुलेटेड ओवर देम. उनके ऊपर क्या होता है जब पूरा जंगल क्या है ऐसा अर्थ के ऊपर क्या सो गया था लिपट गया था जाने के बाद उसके ऊपर मट्टी जमा होने के बाद एज अ रिजल्ट दे गॉट द कंप्रेशन. वो क्या हुए अंदर मट्टी आने के कारण कंप्रेस हो गए. द टेम्परेचर इंक्रीज एज दे सैंक डीपर. जब वो होल जाने लगे जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ने लगा. अंडर दिस कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर द हाई प्रेशर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कोल. नाउ सी the dead parts of the plants and the animals are converted into the coal due to the high temperature and the pressure. 300 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था. पूरा जो जंगल है उसमें जो एनिमल्स रहते हैं वो टोटली क्या मतलब डिस्ट्रॉय हुए थे. डिस्ट्रॉय होने के बाद उनके ऊपर क्या है एक जो सॉइल का लेयर आने लगा. आने के बाद कुछ समय के बाद ड्यू टू द ट्रिमेंडस टेम्परेचर एंड द प्रेशर द डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू उनका टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेशर बढ़ने के कारण जो एनिमल्स और प्लांट के जो डेड पार्ट है उनका किस में कन्वर्ट हुआ बोले तो इन कोल. एज द मेन कंपोनेंट ऑफ कोल इज कार्बन. दिस प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन. नाउ सी द प्रोसेस ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू द कोल इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन. द मेन पार्ट ऑफ कोल इज कार्बन. ध्यान में रखिए तो कोल का मेन पार्ट क्या बोले तो कार्बन है. द पीरियड ड्यूरिंग विच दिस प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन टुक प्लेस इज कॉल्ड द कार्बोनिफेरस एज. द पीरियड ड्यूरिंग विच दिस प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन. तो जिस काल में कोल का फॉर्मेशन हुआ है कोल रेडी हुआ है उसको हमें क्या कहना हो तो कार्बोनिफेरस एज. नाउ सी टाइप्स ऑफ कोल. कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन.
Coal is a complex mixture of a carbon. Presence of a carbon in a coal. हर एक कोल में जो कार्बन कितना प्रेजेंट रहता है इसके आधार के ऊपर कोल के क्या हो तो अलग अलग क्या है प्रकार हो चुके हैं। Now see, carbon, hydrogen and oxygen with some amount of nitrogen, sulfur and phosphorus. Now see, coal is a complex mixture of a carbon, hydrogen, oxygen with some amount of nitrogen. कोल किसका मिक्सचर है? One is a carbon, one is oxygen, one is a hydrogen and one is a nitrogen, sulfurous and the phosphorus. नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का उसमें क्या होता है कुछ परसेंटेज रहते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड द ऑक्सीजन. Depending upon the content of a carbon, coal is of 3 types. Now see, depending upon the content of a coal, there are 3 types of a coal. ध्यान में रखिए. तो depending upon the content of a coal, तो में कितना कार्बन है, ध्यान में रखिए. Depending upon the content of a carbon, coal is classified into the 3 categories. तो एक जो कोल है उसमें कितना कार्बन है इसके आधार के ऊपर उसकी क्या हो तो क्लासिफिकेशन हुई है. सो है there are 3 types of a coal. Now see, there are 3 types of a coal. First one, now see, anthracite. First one is anthracite. Anthracite is the best variety of a coal. It has more than 90% of a carbon content. Now see, anthracite is a good quality and good variety of a coal because it contains more than 90% of a carbon. ध्यान में रखिए, more than 90% of a carbon किस में रहता है तो anthracite coal में रहता है. तो anthracite is a good variety of a coal. It has more than 90% of a carbon content. Next one, bituminous. Next one is bituminous. Next one is bituminous. ध्यान में रखिए, bituminous coal has about 65 to 70% of a carbon content. ध्यान में रखिए, bituminous में क्या होता है 65 to 70% of carbon contents are available. तो bituminous coal में क्या होता है ओनली क्या है 65 to 70% क्या रहता है तो उसमें कोल रहता है. नेक्स्ट नाउ सी लिग्नाइट. लिग्नाइट कोल इज अ ब्राउन कोल. ध्यान में रखिए, लिग्नाइट इज अ ब्राउन कोल. इट हैज ओनली 38 to 40% of carbon content. तो ध्यान में रखिए, लास्ट वन इज lignite. So lignite contain only 38 to 40% of carbon content. Understand? Depending upon the content of a carbon, coal is classified into the 3 categories. One is first one is anthracite. Anthracite is the best variety of a coal. It contains more than 90% of carbon. Next one is bituminous. Bituminous contain only 65 to 70% of carbon. And lignite is a brown coal. It contains only 38 to 40% of carbon content. Understand? कोल के जो क्लासिफिकेशन है किसके आधार के ऊपर वैसे हो तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ कार्बन, हाउ मच कार्बन इज प्रेजेंट इन द कोल. कोल में कितना कार्बन प्रेजेंट रहते हैं इसके आधार के ऊपर कोल के क्या हो तो 3 प्रकार पड़े. सो नाउ सी, फैन heated in air, coal burns and produce carbon dioxide gas mainly. Now see, when coal is heated in the air, in the presence of air, जब भी हम कोल को हीट अप्लाई करेंगे in the presence of air, it produce the large amount of carbon dioxide. जो हम कोल लेते हैं, कोल को हीट अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद in the presence of air, it produce the large amount of carbon dioxide gas. In India, coal is found in छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु. तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कोल का प्रोडक्ट्स कहाँ पर मिलता है तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु. तो इन राज्यों में हमें क्या हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या है कोल क्या है मिल जाता है. नाउ सी द destructive distillation of coal. During the destructive distillation of coal, it is heated strongly
to 1000 degrees Celsius in the absence of air. Now see, in the absence of air, coal is heated up to 1000 degrees Celsius. ध्यान में रखिए, कोल को क्या बोलो तो 1000 डिग्री सेल्सियस में क्या उसको क्या है हीट अप्लाई की जाती है. As a result, many useful organic and inorganic products are obtained. Now see, when coal is heated at 100 degrees Celsius in the absence of air, it produces the large number of organic and inorganic substances. ध्यान में रखिए, जब भी हम किसी कोल को क्या करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं विदाउट एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो क्या हो तो बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को क्या है प्रोड्यूस कर लेता है. तो कौन से कर लेता है? These useful products are now see coke. Now see, when coal is heated, coal को हम क्या करेंगे? Coal is heated at 1000 degree Celsius in the absence of air. ध्यान में रखिए, absence of air. In the absence of air, so it produces the organic and the inorganic products. Then it produces the organic and inorganic products. Understand? कोल को जब भी हम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, ध्यान में रखिए 1000 डिग्री सेल्सियस क्या है अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद ध्यान में रखेंगे तो ये क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को क्या है प्रोडक्ट करता है. फर्स्ट वन इज अ कोक, उसमें जैसे हमें ये मिलते हैं, वन इज अ कोक, नेक्स्ट वन इज अ कोल तार, नेक्स्ट वन इज अ कोल गैस, नेक्स्ट वन इज अ कोल गैस, नेक्स्ट वन इज अ कोल गैस. Listen, now see one by one. अब हम क्या है एक एक करके उसके बारे में क्या है डिस्कशन कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज अ कोक. The solid residue left after the respective destination of a coal is called the coke. जो कोल का डिस्टिलेशन होता है होने के बाद जो भी सॉलिड पार्ट रिमेन रहता है उसको हमें क्या कहना हो तो कोक कहना है. इट कंटेन्स अबाउट 98% ऑफ कार्बन. तो इसमें क्या हो तो 98% क्या रहता है कोक में कार्बन रहता है. ध्यान रखिए, coke contains 98% of carbon compounds. The solid residue left after the destructive distillation of coal. जब कोल का डिस्टिलेशन होता है होने के बाद जो सॉलिड बचता है रेसिड्यू जो मटेरियल बचता है कोक, उसमें क्या होता है 98% क्या रहता है बोले तो कार्बन रहता है. नेक्स्ट वन कोल तार. इट इज अ ब्लैक थिन लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल. जब डामर जिसको बोलते हैं जो रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है वो रहता है कोल. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस और कार्बन कंपाउंड्स. इसमें क्या हो तो लगभग क्या है 200 सब्सटेंस का क्या है मिक्सचर रहता है. कंटेन्स नियर बाय 200 सब्सटेंसेस और कार्बन कंपाउंड्स. और कार्बन कंपाउंड्स. लास्ट वन सी कोल गैस. The gas obtained during the processing of a coal to get coke is called as the coal gas. जब हम किसी कोल से कोक को रेडी करते समय जो गैस निकलता है उसको हमें क्या कहना है तो कोल गैस कहना है. It is a mixture of hydrogen, carbon monoxide and the methane. Now see, coal gas is a mixture of hydrogen, carbon monoxide, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन. जब भी हम कोल से कोक को रेडी करते समय जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको हमें क्या कहना है तो कोल गैस कहना है. इट इज कॉल्ड एज द कोल गैस. कोल गैस वाज यूज्ड फॉर द स्ट्रिंग लाइटिंग इन द लंदन 1810 एंड न्यूयॉर्क इन 1828. इट इज नॉट यूज्ड मच नाउ. तो पुरातन साल में उसके क्या हो तो बहुत सारे क्या है यूज किए जाते हैं. ओके, टुडे स्टॉप, फिर वी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन. तो आज के सेशन में हमने डिस्कशन किया रिन्यूएबल सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ फोसिल फ्यूल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूल्स,
coal, formation of coal, and the types of coal already discussed in this session. Okay, we will continue on the next session.